بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے علی بابا کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنی تجوری کو کھولا۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے یہی کام کیا کرتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ تجوری بالکل خالی پڑی تھی۔ اس میں سے تمام زیورات، اشرفیاں اور ہیرے اس طرح غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا اور لگا چلانے۔ ارے میں مارا گیا، کوئی چور میری تجوری کا صفایا کر گیا، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ حیرت ہے، اتنے بہت سے زیورات، اشرفیاں اور ہیرے چور کس طرح اٹھا کر لے گیا؟ علی بابا کی بیگم نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، پہلے میں اپنے بھائی کا حال پوچھ کر آتا ہوں، کہیں کوئی اس کی تجوری کا بھی تو صفایا نہیں کر گیا۔ یہ کہہ کر علی بابا باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی دوسرے علی بابا کا گھر تھا۔ اس نے زور زور سے دوسرے علی بابا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ کیا ہو گیا ہے صبح ہی صبح؟ کیا تمہیں تمام رات چوہوں نے سونے نہیں دیا؟ دوسرے علی بابا نے تیز آواز میں کہا۔ ارے ہاں، واقعی ان کم بخت چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ صبح صبح میں تم سے یہی مشورہ کرنے آیا تھا کہ ان بدبخت چوہوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ہاں تو تم کوئی ترکیب بتا رہے ہو یا میں تیسرے علی بابا کا دروازہ کھلواؤں؟ لیکن تم اتنی سی بات کے لیے دوپہر کے وقت بھی تو آ سکتے تھے۔ ہاں واقعی میں اتنی سی بات کے لیے دوپہر کو بھی تو آ سکتا تھا۔ اچھا تم آرام کرو، میں دوپہر کو آ جاؤں گا۔ ہاں بہت بہت شکریہ، تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، میری ہر بات فوراً مان لیتے ہو۔ اور ہاں، دوپہر کو جب آؤ تو تھوڑی سی لسی لیتے آنا۔ کل سے میری بھینس بیمار ہے، دودھ نہیں دے رہی، اور لسی کے بغیر تم جانتے ہو لقمہ میرے حلق سے نہیں اترتا۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں۔ خیر، اگر گھر میں لسی بچ گئی تو میں تمہارے لیے لیتا آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، اگر نہ بچے تو تب بھی لیتے آنا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ اچھی بات ہے، آخر تم میرے بھائی ہو، مذاق تو نہیں ہو۔ لسی نہ بچی تو بھی میں ضرور تمہارے لیے لسی لیتا آؤں گا۔ اور پہلا علی بابا واپس مڑا، اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کے سب صحن میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ہائے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ علی بابا نے حیران ہو کر کہا۔ کیا بنا؟ کیا معلوم ہوا؟ دوپہر کو بات کریں گے، اور ہاں اس کے لیے لسی بھی لے کر جاؤں گا۔ بیچارہ بغیر لسی کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی دوسرے علی بابا کی۔ اس نے کہا ہے کہ چوہوں کے بارے میں دوپہر کو بات کریں گے۔ تم فکر نہ کرو بیگم، آج ان چوہوں کا میرے گھر میں آخری دن ہے۔ چوہوں نے تو واقعی ستیہ ناش کر رکھا ہے، لیکن تم چوہوں کے بارے میں بات کرنے کب گئے تھے؟ بیگم نے چلا کر کہا۔ ہائے، میں چوہوں کے بارے میں بات کرنے نہیں گیا تھا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ چوہوں کے بارے میں بات کرنے گئے تھے؟ غضب خدا کا، صبح صبح بھی کوئی چوہوں کے بارے میں بات کرتا ہے؟ واقعی یہ بات بھی ہے، لیکن پھر میں اپنے بھائی کے پاس کس لیے گیا تھا؟ یہی تو بات سوچنے کی ہے۔ ارے تو سوچو، روکا کس نے ہے سوچنے سے؟ وہ سب سوچ میں ڈوب گئے۔ ایسے میں علی بابا کی نظر کھلی تجوری پر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صحن سے بھی تجوری صاف نظر آ رہی تھی۔ ہائے، یہ میری تجوری کو کس نے کھولا؟ اس نے چلا کر کہا۔ اوہ تجوری، ہاں واقعی تجوری کو کس نے کھولا؟ بیگم نے بھی چلا کر کہا۔ ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری دولت کہاں گئی؟ اف، اب یاد آیا، میں اپنے بھائی سے کیا پوچھنے گیا تھا کہ کہیں اس کی تجوری بھی تو کسی چور نے خالی نہیں کر دی۔ ٹھہرو، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ کیا خاک پوچھ کر آئیں گے پھر بھول جائیں گے؟ بہتر ہوگا کہ ننھے علی بابا کو ساتھ لے جائیں، یہ آپ کو یاد کرا دے گا کہ آپ وہاں کس لیے پہنچے ہیں۔ اچھی بات ہے، آؤ ننھے علی بابا۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر اس نے دوسرے علی بابا کے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا۔ آؤ میرے پیارے بھائی، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم شاید بھول گئے، علی بابا نے کہا۔ کیا بھول گیا؟ میں اور کچھ بھول جاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ بابا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس آئے تھے، ننھے علی بابا نے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا، واقعی میں تو بھول ہی گیا۔
हाँ तो क्यों आए थे तुम मेरे प्यारे भाई? तिजोरी, मेरी तिजोरी किसी ने खाली कर दी है। ओहो, अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? दूसरे अली बाबा ने हैरान होकर कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। बाबा जान, वो कोई चोर था, दौलत चुरा कर ले गया। और हाँ, अब सारी बात याद आई, कोई चोर मेरी तिजोरी का सफाया कर गया है। ज़रा तुम जल्दी से देख लो, कहीं वो चोर इधर भी ना आया हो। अरे बाप रे, तुम तो मुझे डरा रहे हो। खैर, मेरा क्या जाता है, डर लेता हूँ। ये कहकर वो थर थर कांपने लगा। अरे भाई मियाँ, पहले तिजोरी को देख लो, डर बाद में लेना। हाँ वाकई, ये भी ठीक है, आओ तुम भी आओ। दूसरे अली बाबा ने अपनी तिजोरी खोली। वो जेवरात, अशरफियों और हीरों से भरी पड़ी थी। खुदा का शुक्र है, मेरी तरफ वो चोर नहीं आया। अच्छी बात है, अब मैं तीसरे अली बाबा से पूछ लूँ। ज़रूर पूछ लो, उसने कहा, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छी बात है। एक एक करके उन्होंने तमाम अली बाबाओं से पूछ डाला और किसी की तिजोरी खाली ना मिली। इसका मतलब ये था कि तिजोरी सिर्फ पहले अली बाबा की खाली की गई थी। वो बस्ती अली बाबा की बस्ती के नाम से मशहूर थी। इस बस्ती में पूरे 40 अली बाबा रहते थे। ये आपस में भाई थे। हर एक का घर अलग अलग था। ये इसी अली बाबा के ख़ानदान के थे जिसने 40 चोरों का माल लूटा था। अपने गधों पर माल भर भर कर इस गार में से माल लाया था और सारे चोरों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर उसने कई शादियां की, बीवियों से कई कई बच्चे हुए और इस तरह ये ख़ानदान फैलता चला गया, यहाँ तक कि मौजूदा ज़माने तक भी चला आया। और अब एक शहर में उनकी बाकायदा बस्ती मौजूद थी। इस बस्ती का नाम बस्ती अली बाबा था। इस बस्ती में 40 घर थे। इन 40 घरों में 40 अली बाबा रहते थे। 40 चोरों की लूटी हुई ये दौलत कारून के ख़जाने से भी कई गुना बड़ी थी। इस दौलत को उन्होंने निहायत इंसाफ के साथ आपस में तकसीम कर लिया था। लेकिन इस दौलत की वजह से वो कोई काम नहीं करते थे, बस खाते थे, पीते थे, सोते थे और जागते थे। करने के लिए उनके पास काम तो कोई था नहीं, लिहाजा वो बहुत सुस्त और कायल हो गए थे। उनकी याददाश्त भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बात बात पर कोई ना कोई बात भूल जाते थे। दोपहर को वो सब जमा हुए और इस पर गौर किया गया कि क्या करें। आखिर वो सब जमा होकर थाने पहुंचे। थानेदार इतने बहुत से लोगों को देखकर घबरा गया। थे भी बहुत मोटे ताज़े। क्या बात है, आप लोगों का इरादा थाने पर हमला करने का तो नहीं? आपका ताल्लुक डाकुओं से तो नहीं? जी नहीं, हम तो अली बाबा हैं। अली बाबा हैं? अच्छा समझा, आप अली बाबा हैं। और ये सब कौन हैं? थानेदार बोला। ये भी अली बाबा हैं। ये क्या बात हुई? आप सब के सब अली बाबा किस तरह हो सकते हैं? बस हैं, इसमें आपको क्या एतराज़ हो सकता है? हम सब ने अपना नाम अली बाबा रखा है। हैरत है, कमाल है, अफसोस है, थानेदार ने जल्दी जल्दी कहा। और भी अगर कुछ है तो वो भी बता दें। पहले अली बाबा ने जल कर कहा, जी नहीं, आप बताएं, आप लोगों को हुआ क्या है? हमारे पहले भाई की तिजोरी किसी चोर ने साफ कर दी है। हम रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। आप चलकर मौका देख लें। हमें डर है कहीं चोर दूसरे भाइयों की तिजोरियों के साथ भी यही सलूक ना करे। ओहो, अच्छा, तिजोरी में क्या कुछ था? थानेदार ने पूछा। ये पूछिए क्या नहीं था, पहले अली बाबा ने जल्दी से कहा। चलिए ये बता दें क्या नहीं था। आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं तो आपने खुद ही तो कहा है। ये पूछिए क्या नहीं था तिजोरी में। खैर मैं बताता हूँ। तिजोरी में बेशुमार हीरे थे, अशरफियाँ थी, जेवरात थे, सोने के भी और चांदी के भी। अरे बाप रे, इतनी दौलत आपने कहाँ से हासिल की? और क्या? थानेदार ने घबरा कर कहा। और क्या? क्या आप टैक्स देते हैं? टैक्स? कैसा टैक्स? इनकम टैक्स। थानेदार ने बुरा सा मुंह बनाया। वो क्या होता है? जिन लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा दौलत होती है ना, हुकूमत उनकी दौलत में से हिस्सा वसूल करती है। ओह नहीं तो, हमें तो किसी ने ये बात बताई ही नहीं। अब अगर मैं रिपोर्ट लिखूंगा तो इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि इतनी दौलत कहाँ से हासिल की। और अगर आप जवाब ना दे सके तो इनकम टैक्स वाले आपको गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे। फिर मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब आप सोच लें, रिपोर्ट लिखवाना पसंद करेंगे या नहीं?
हम ज़रा सोच लें। ज़रा क्या, आज तमाम दिन सोच लें। अगर रिपोर्ट लिखवाने का फैसला हो जाए तो कल आकर लिखवा लेना, थानेदार ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, उन्होंने खुश होकर कहा। वो सब अपनी बस्ती में लौट आए, लेकिन वहां पहुंचकर भूल गए कि उन्हें क्या करना है। सब खा पी कर सो गए। दूसरे दिन सुबह सवेरे दूसरे अली बाबा की आंख खुली। उसने सरहाने के नीचे से तिजोरी की चाबी उठाई और तिजोरी को खोला। दूसरे ही लम्हे वो धक से रह गया। तिजोरी खाली पड़ी थी। अरे मेरी तिजोरी कौन खाली कर गया? एक बार फिर वो सब जमा हुए। अब उन्हें याद आया कि वो थानेदार से क्या बात करके आए थे। पहले तो ये फैसला करो कि रिपोर्ट लिखवानी है या नहीं। इस तरह इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे पड़ गए तो क्या होगा? वो सर जोड़कर बैठ गए। आखिर उन्होंने काफी देर बाद सर ऊपर उठाए। हमें थानेदार से बात करना होगी। हम उससे सौदा कर लेते हैं। सौदा? क्या मतलब? कैसा सौदा? ये कि वो चोरी की रिपोर्ट ना दर्ज करे और वैसे चोर का सुराग लगाने की कोशिश करे। अगर उसने चोर को पकड़ लिया और उससे हमारा माल हमें दिलवा दिया तो हम थानेदार साहब को भी हिस्सा देंगे। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भाई वाह, इससे अच्छी तरकीब क्या हो सकती है? पहले अली बाबा ने कहा। वो सब जमा होकर थानेदार के पास पहुंचे। थानेदार उन्हें देखकर मुस्कुराया। हाँ सुनाओ, क्या फैसला हुआ? आज दूसरे अली बाबा की तिजोरी चोर ने साफ कर दी। ओहो अच्छा, थानेदार ने हैरान होते हुए कहा। फिर जल्दी से बोला, फिर आपने क्या फैसला किया है? क्या मैं रिपोर्ट दर्ज कर लूं? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि चोर भी मिल जाए, चोरी का माल भी मिल जाए और इनकम टैक्स वालों को कानो कान खबर भी ना हो? ऐसा तरीका भला क्या हो सकता है? इनकम टैक्स वाले हर हफ्ते थाने आते हैं और तमाम रिपोर्टों की नकल ले जाते हैं। दरअसल मौजूदा हुकूमत ने उन्हें ख़ास तौर पर हिदायत दी हैं कि थानों से जाकर पहले रिपोर्टों की नकल हासिल किया करें ताकि दौलतमंद लोगों का सुराग लग सके और उनसे टैक्स वसूल किया जा सके। तो फिर ऐसा करते हैं, आप रिपोर्ट दर्ज ना करें, चोर का सुराग रिपोर्ट के बगैर लगाएं। इस तरह हम आपको इस दौलत में से एक बड़ा हिस्सा दें जो आप चोर से हासिल करेंगे। इसमें बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर मेरे ऑफिसर को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन उसे पता लगेगा ही क्यों? अच्छी बात है, मैं आज गौर कर लूँ। आप लोग कल मेरे पास आना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उठ खड़े हुए और अपनी बस्ती को लौट गए। तीसरे दिन तीसरे अली बाबा की तिजोरी का चोर ने सफाया कर दिया था। अब तो वो और भी परेशान हो गए। सब जमा होकर थाने पहुंचे। एक और खबर सुन लो थानेदार साहब। अब क्या हुआ? तीसरी तिजोरी का सफाया हो गया। मालूम होता है चोर तुम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आपको कैसे मालूम हो गया? क्या उसने आपके सामने हाथ धोए थे? अगर ऐसा है तो आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पहले अली बाबा ने कहा। अरे नहीं, ये बात नहीं है। मेरा मतलब था वो आपके पीछे बुरी तरह पड़ गया है। तो फिर इसमें हाथ धोने का जिक्र कहाँ से निकल आया था? दूसरे अली बाबा ने बुरा सा मुंह बनाया। खैर छोड़ें इस बात को। मुझे आपकी पेशकश मंजूर है। अगर मैंने चोर को पकड़ लिया तो मैं निस्फ दौलत लूँगा। ठीक है, हमें मंजूर है। मैं शाम को आप लोगों की बस्ती में आऊँगा, आपके घरों का जायज़ा लूँगा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँगा कि चोर किस तरफ से आता है, किस तरफ से जाता है, अंदर किस तरह दाखिल होता है। ठीक है। इस शाम थानेदार उनकी बस्ती में पहुँच गया। उसने एक घर का बगौर जायज़ा लिया। फिर रात के वक्त भी वहीं पर रहने का प्रोग्राम बनाया। उसने उन सब से कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं सुबह तक ज़रूर चोर को पकड़ लूँगा। भाई वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। हाँ वाकई मज़ा ज़रूर आएगा, फिक्र ना करो, उसने कहा। रात को थानेदार ने वहाँ ड्यूटी दी और तमाम अली बाबा गहरी नींद सोते रहे। सुबह सवेरे चौथे अली बाबा ने अपनी तिजोरी खोली तो बौखला गया। तिजोरी खाली पड़ी थी। वो दौड़ कर बाहर निकला तो थानेदार उसके दरवाजे पर बैठा ऊँघ रहा था। उठिए जनाब। थानेदार साहब देखिए, आज मेरी तिजोरी का वो चोर सफाया कर गया। थानेदार घबरा कर उठा और अंदर जाकर देखा तिजोरी खाली पड़ी थी। इसका मतलब है आप बाहर तमाम रात सोते रहे? नहीं, मैं सुबह होने पर सोया था और रात में कोई चोर इस तरफ नहीं आया। तब फिर तिजोरी कैसे साफ हो गई? इस बात पर तो मुझे भी हैरत है। लेकिन अब हम क्या करें? आप भी हमारे काम नहीं आ सके।
चोरी का सुराग इतनी आसानी से तो नहीं लग सकता। 2-4 दिन तक मुसलसल निगरानी करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर उसका सुराग लगेगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं ड्यूटी दूंगा, वरना आप अपने घर राजी, मैं अपने थाने राजी। ठीक है, हम सब मशवरा करके आपको बताएंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। थाने आकर बता देना। दोपहर को सब अली बाबा फिर सर जोड़कर बैठे और आखिरकार ये तय किया कि थानेदार को अभी चंद दिन और दिए जाएं। वाकई चोर को फौरन पकड़ना आसान काम नहीं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने थाने जाकर थानेदार को अपना ये फैसला सुना दिया। उसने कहा, अच्छी बात है, आपने दुरुस्त फैसला किया। आपका फैसला सुनकर खुशी हुई। मैं चंद दिन के अंदर अंदर चोर को पकड़ कर दिखा दूंगा। तमाम अली बाबा खुश हो गए। इस रात भी 5वें अली बाबा की तिजोरी खाली हो गई, लेकिन अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी, इसलिए कि वो जानते थे थानेदार अपना काम बराबर कर रहा है और बहुत जल्द तमाम दौलत चोरों से वापस हासिल कर ली जाएगी। फिर 3 दिन और गुजर गए। 8 तिजोरियां खाली हो गईं। आखिर 9वें दिन थानेदार ने उन सबको जमा किया और बताया, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आखिरकार मैंने चोर का सुराग लगा लिया। वो मारा, वो कहाँ है? इसका ठिकाना पहाड़ी इलाके में है। वो एक गार में रहता है और उसने आपसे लूटी हुई तमाम दौलत उस गार में जमा कर रखी है। वो मारा, ये काम किया आपने? पहला अली बाबा चिल्लाया। फिर हम कब अपनी दौलत उससे हासिल करने जाएंगे? अभी नहीं, 1-2 रोज़ और इंतज़ार करना होगा, इसलिए कि मैं उसके गिर्द अपना जाल लगा रहा हूँ। इस तरह वो भाग नहीं सकेगा। बहुत खूब थानेदार साहब, जवाब नहीं आपका, दूसरे अली बाबा ने कहा। 2 रोज़ और गुजर गए। इस दौरान 2 तिजोरियां और खाली हो गईं, लेकिन अली बाबाओं को अब तिजोरियां खाली होने की कोई फिक्र नहीं रह गई थी। और फिर अगले दिन थानेदार ने ऐलान किया, आज हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ने जाएंगे। शाम के वक्त थानेदार ने उन सबको जमा किया। फिर 40 के 40 अली बाबाओं को लेकर वह जंगल की तरफ रवाना हुआ। उन्हें बहुत दूर तक पैदल सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इन अतराफ में कोई सवारी नहीं आ सकती थी। हाँ, घोड़े या गधे ज़रूर लाए जा सकते थे। अली बाबा गधों पर सवारी को अपनी बेइज्जती ख्याल करते थे। घोड़ों पर चढ़ने से डरते थे, लिहाजा उन्हें पैदल ही आना पड़ा। ये एक पहाड़ी इलाका था। वो पथरीली ज़मीन पर चलते चलते थक गए। पैदल चलने की उन्हें भला कहाँ आदत थी? वो तो कहीं जाते ही नहीं थे, अपने घरों से भी नहीं निकलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक अली बाबा दूसरे अली बाबा के घर हो आता था, बस एक दूसरे से मिल लेते थे। उनके पाँव बुरी तरह दुखने लगे। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगे। आखिर पहले अली बाबा ने कहा, बस भाई थानेदार, अब और नहीं चला जाता। इससे तो बेहतर था हम गधों पर आ जाते, लेकिन अभी तो बहुत फासला बाकी है। क्या ख्याल है, फिर क्यों ना कल गधों पर बैठकर आ जाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा। वो सब वहीं से वापस लौट गए। दूसरे दिन नवे अली बाबा की तिजोरी चोर साफ कर गया था, लेकिन अब उन्हें भला किस बात की परवाह थी? वो जानते थे वो चोर के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और अपनी सारी दौलत ले आएंगे। अगले दिन 41 गधों का इंतजाम किया गया। वो उन पर सवार हुए और उस सिमत में रवाना हो गए। लोग उन्हें देखकर, गधों के इस जुलूस को देखकर बहुत हंसे। उन्हें बहुत शर्म आई, लेकिन वो और कर भी क्या सकते थे? अपनी दौलत इस गार में चोर के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे। आखिर जब गधों का जुलूस शहर से बाहर निकल गया तो लोगों के मजाक से उनकी जान छूटी। उनका सफ़र जारी रहा, यहाँ तक कि वो एक गार के धाने तक पहुँच गए। यही वो गार है जिसमें चोर ने आप लोगों की दौलत जमा कर रखी है। ओह, उनके मुंह से एक साथ निकला, अब हम अंदर दाखिल होंगे। चोर इस वक्त गार के अंदर नहीं होगा। हम सारी दौलत समेट कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन थानेदार साहब, ये तो इस मसला का हल नहीं है। जब तक हम इस चोर को नहीं पकड़ेंगे, उसे मौत के घाट नहीं उतारेंगे, उस वक्त तक वो हमें कहाँ चैन लेने देगा। बात तो ठीक है। तब फिर हमें यहीं रुक कर पहले चोर का इंतज़ार करना होगा, या फिर गार के अंदर चढ़ कर हम चोर का इंतज़ार करें। मेरे ख्याल में तो अंदर बैठ कर इंतज़ार करते हैं। ठीक है, थानेदार ने कहा, और सब इस गार में दाखिल होते चले गए। गार अंदर से बहुत खुला था। अंदर पुराने ज़माने का एक चिराग जल रहा था। उस चिराग को देखकर वो चौंके। अरे, कहीं ये चिराग अलादीन का तो नहीं? एक अली बाबा ने कहा। लगता तो वही है। तब हम जाते वक्त ये चिराग भी ले जाएंगे, दूसरे ने कहा। लेकिन अभी आप लोग इस चिराग को हाथ नहीं लगाएंगे, वरना गार में अंधेरा हो जाएगा, थानेदार ने कहा।
बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे मगर गार में दौलत तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। पहले चोर आएगा, फिर हमें दौलत नजर आएगी। क्यों? क्या वो दौलत को सुलेमानी टोपी उड़ाकर चला गया है? एक अली बाबा ने घबरा कर कहा। नहीं, इस गार में कुछ खुफिया जगह हैं जिनके खुलने का तरीका उस चोर को मालूम है। जैसे खुल जा सिम सिम, नहीं सुना आपने? हमने नहीं सुना होगा, वो हमारे ही तो दादा परदादा थे जिन्होंने 40 चोरों से ये सारी दौलत हासिल की थी। खुल जा सिम सिम कहकर गार में दाखिल होते थे और गधों पर दौलत रखते और घर ले आते थे। यहाँ तक कि तमाम दौलत उन्होंने अपने महल में जमा कर ली थी और आज तक हम उस दौलत पर ही तो ऐश कर रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो आपको ये कहानी जुबानी याद है? बिल्कुल, वो एक साथ बोले। चोर अब तक नहीं आया। मैं ज़रा बाहर निकल कर उसको देख कर आऊँ, अगर आप कहें तो। अच्छी बात है, लेकिन बहुत दूर ना निकल जाइएगा, वरना हमें डर लगने लगेगा। आप फिक्र ना करें। थानेदार गार से बाहर निकल गया और फिर उन्हें गार का मुंह बंद होता नजर आया। एक पत्थर सरक कर गार के मुंह पर आ गिरा। अरे ये क्या? वो चिल्लाए और गार के मुंह की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन बाहर से थानेदार की कोई आवाज सुनाई न दी। भाई थानेदार साहब, ये क्या? आपने गार का मुंह क्यों बंद कर दिया है? खुदा के लिए इसे खोलिए, हमारे दम घुट रहे हैं। थानेदार की तरफ से कोई जवाब ना आया। वो चीख चीख कर थक गए। अब क्या करें? ये तो हमें धोखा दे गया। अब ये हमारी बस्ती में जाकर बाकी तिजोरियों से माल खुद हड़प करेगा। उसने यूं, अगर एक चोर ये काम कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? वो तो चोर से भी ज्यादा आसानी से ये काम कर सकता है। हाँ, लेकिन हम क्या करें? सब मिलकर इस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, जोर तुम लगा लो। मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूँ, दूसरे ने कहा। मैं भी कोई कम थका हुआ नहीं हूँ, एक और अली बाबा बोला। गरज कोई भी पत्थर पर जोर लगाने पर तैयार ना हुआ और सब एक तरफ बैठ गए। फिर न जाने कब सो गए। दूसरे दिन उनकी आंख खुली तो इसी गार में थे और ये देखकर उनकी हैरानी और बढ़ी कि उनकी बीवी और बच्चे भी वहां मौजूद थे। हाय, ये तुम लोग यहाँ किस तरह पहुंच गए? थानेदार साहब लाए हैं। वो खुद कहाँ हैं? शायद गार के बाहर। थानेदार साहब, क्या आप गार के बाहर मौजूद हैं? हाँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन आप गार से बाहर क्या कर रहे हैं? कई अली बाबा चीख कर बोले। इंतज़ार, चोर का इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं बदतमीज़ कहाँ रह गया है। अब तो उसने आप सब की तिजोरियाँ खाली कर दी हैं। पहले तो वो एक रात में एक तिजोरी खाली करता था, लेकिन आप लोगों के यहाँ आने पर तो उसने एक ही रात में तमाम तिजोरियाँ खाली कर दी। अरे बाप रे! और आप कुछ ना कर सके? और मैं क्या करता? मैं तो आप लोगों को यहाँ पहुँचाने में लगा हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ? और आपने गार का मुंह क्यों बंद कर रखा है? अगर गार का मुंह बंद नहीं करूँगा तो चोर काबू में नहीं आएगा। वो कैसे? वो मुंह खुला देखकर वो जान जाएगा कि अंदर उसके दुश्मन मौजूद हैं और भाग निकलेगा। फिर आपके लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। उससे निजात हासिल करने का बस एक ही तरीका है, और वो क्या? ये कि हम उसका इंतज़ार करें। अच्छी बात है, तो आप भी हमारे साथ अंदर आकर बैठ जाएं। नहीं जनाब, मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, इसलिए कि इस तरह चोर काबू में नहीं आएगा। थानेदार ने कहा। पता नहीं क्या मामला है। आपने तो कहा था इस चोर ने हमारी तिजोरियों से लूटी हुई रकम इस गार में छुपा रखी है, लेकिन यहाँ तो दौलत का नामो निशान तक नहीं। इस गार में कुछ खुफिया जगह हैं। दौलत चोर ने उन खुफिया जगहों पर रखी हुई है, लेकिन बाकी तिजोरियों की दौलत उसने कहाँ छुपाई होगी? अब वो दौलत ही तो गधों पर लाद के यहाँ लाएगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भाई वाह, ये हुई ना बात, पहले अली बाबा ने खुश होकर कहा। लेकिन अगर वो ना आया, हमें देखकर और इधर उधर कहीं छुप गया तो? तब फिर आपको उसे इन पहाड़ों में ढूंढना होगा। आखिर आप 40 अली बाबा हैं, एक चोर को नहीं ढूंढ सकते? क्यों नहीं ढूंढ सकते? ज़रूर ढूंढ सकेंगे। बस तो फिर अगर वो ना आया तो उसे ढूंढना आपका काम होगा और उसे जेल की हवा खिलाना मेरा काम होगा। अच्छी बात है। 3 घंटे गुजर गए, लेकिन उन्हें चोर के आने की कोई खबर ना मिल सकी। आखिर हम कब तक इंतज़ार करेंगे? लो, इधर मेरा भी थाने पहुंचने का वक्त हो रहा है। अगर मैं वक्त पर थाने नहीं पहुंचा तो पुलिस वाले इधर आ जाएंगे और फिर आपकी दौलत आपके हाथ नहीं लग सकेगी। वो कैसे? पुलिस वाले सारी दौलत खुद हड़प कर जाएंगे।
میں غار کا منہ کھول رہا ہوں، آپ لوگ اب اسے ان پہاڑیوں میں تلاش کریں، میں تھانے ہو کر آتا ہوں۔ اگر میں نہ آ سکا تو آپ لوگ تھانے کی طرف ہرگز نہ آئیے گا، کہیں پولیس والوں کو آپ کی کہانی معلوم ہو گئی تو پھر ساری دولت گئی آپ کے ہاتھوں سے۔ اور پھر تھانے دار نے غار کا منہ کھول دیا۔ وہ سب باہر نکل آئے۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ اس کا انتظار کریں اور پھر تلاش شروع کر دیں۔ اچھی بات ہے۔ تھانے دار شہر کی طرف مڑ گیا۔ 40 علی بابا اور ان کی بیوی بچے بیٹھے بہت دیر تک چور کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ آیا تو ایک نے کہا، وہ ضرور ہمیں دیکھ کر یہاں کہیں چھپ گیا ہے، آؤ ہم اسے تلاش کریں۔ وہ ایک ہے اور ہم 40، اور کبھی ہمارے پردادا اکیلے تھے اور وہ 40 تھے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے، ذرا وہ کہانی دہراؤ تو۔ اس کہانی کا کیا دہرانا، سب کو اس کا ایک ایک سین یاد ہے، پھر بھی جانے کیوں آج اس کہانی کو دہرانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بھائی ہمارے پردادا لکڑہارے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے گدھے پر لاد لاد کر شہر لے جایا کرتے تھے، اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا قاسم۔ ایک دن ہمارے پردادا علی بابا جو جنگل میں گئے تو انہوں نے گھوڑوں پر 40 آدمی آتے دیکھے۔ وہ مارے ڈر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور اپنے گدھے کو بھی چھپا دیا۔ 40 گھوڑے سوار ایک غار کے منہ کے قریب آ کر اترے اور ان کا سردار بولا، کھل جا سم سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑوں پر سے بے شمار سامان اتار کر غار میں لے گئے، اور پھر غار سے نکل کر سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ گھوڑے سوار چلے گئے۔ اب ہمارے پردادا علی بابا غار کے منہ پر آئے اور بول اٹھے، کھل جا سم سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ غار ہیرے جواہرات، زیورات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب ہمارے پردادا علی بابا کو معلوم ہوا، وہ 40 گھوڑے سوار تو ڈاکو ہیں اور اپنا لوٹ مار کا سامان اس غار میں رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے گدھے پر لکڑیوں کی بجائے اشرفیاں لا دی اور گھر لے آئے۔ میاں بیوی کا پروگرام یہ بنا کہ ان کو تولا کس طرح جائے۔ ترازو گھر میں تھی نہیں، سو بیوی گئی اور قاسم کے گھر سے ترازو مانگ لائی۔ لیکن قاسم کی بیوی بہت چالاک عورت تھی، اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دی کہ ذرا دیکھیں تو صحیح علی بابا کیا چیز تولنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اشرفیاں تولی تو ایک اشرفی موم کے ساتھ چپک گئی اور قاسم کو اشرفیوں کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے جنگل میں اس غار تک علی بابا پردادا جان کا پیچھا کیا، اور پھر علی بابا کے شہر چلے جانے کے بعد وہ بھی غار میں داخل ہو گیا، لیکن باہر نکلتے وقت کھل جا سم سم کے الفاظ بھول گیا۔ اس طرح وہ باہر نہ نکل سکا اور ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے مار کر وہیں لٹکا دیا۔ قاسم واپس گھر نہ آیا تو اس کی بیوی علی بابا کے پاس آئی اور قاسم کو تلاش کرنے کے لیے اسے جنگل میں بھیجا، ساتھ ہی اسے ترازو سے چپک جانے والی اشرفی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ علی بابا سمجھ گیا کہ قاسم اس کا بھائی غار میں پھنس گیا ہے، چنانچہ وہ رات کے وقت وہاں گئے اور قاسم کی لاش کو اٹھا لائے۔ اب چور اس شخص کی تلاش میں شہر آئے جو ان کے مجرم کی لاش اٹھا کر لے گیا تھا۔ انہوں نے اس درزی کو تلاش کر لیا جس نے قاسم کا کفن سیا تھا۔ انہوں نے درزی سے کہا کہ اس شخص کا گھر انہیں بتا دے جنہوں نے کفن سلوایا ہے۔ درزی نے علی بابا کا گھر چور کو دکھا دیا۔ چور نے اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا تاکہ رات کو جب وہ بدلہ لینے کے لیے آئیں تو انہیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ادھر علی بابا پر دادا کی ایک ملازمہ تھی، اس کا نام مرجینہ تھا۔ وہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے دروازے پر لگا ہوا نشان دیکھا تو بھانپ گئی کہ دال میں ضرور کالا ہے، لہٰذا سب گھروں کے دروازوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ چور جب رات کو آئے تو تمام دروازوں پر نشان دیکھ کر حیران رہ گئے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ اب چوروں کے سردار نے خود درزی کے ذریعے اس گھر کو دیکھا اور ذہن میں رکھ کر لوٹ گیا۔ رات کو وہ اونٹوں پر تیل کے 40 کپے لاد کر وہاں آیا۔ ان کپوں میں 39 چور چھپے ہوئے تھے، صرف 40ویں میں تیل تھا۔ سردار نے آ کر علی بابا سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ تیل کا سوداگر ہے، رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ پردادا علی بابا نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ رات کو تیل کی ضرورت پڑ گئی تو مرجینہ تیل نکالنے کے لیے کپوں کی طرف آئی۔ ایک کپا کھولا تو اس میں چور چھپا تھا۔ باری باری اس نے سب کپے دیکھ ڈالے، تمام میں چور تھے، صرف ایک میں تیل تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو غار والے 40 چور ہیں اور علی بابا کو ختم کرنے آئے ہیں۔ اس نے وہ سارا تیل ایک کڑاہے میں کھولایا اور ان کپوں میں ڈالتی چلی گئی۔
इस तरह चोर जल कर मर गए। फिर मर्जीना ने खंजर से सरदार का भी काम तमाम कर दिया। उसकी इस हरकत पर अली बाबा परदादा को गुस्सा आया, लेकिन मर्जीना ने जब उसके मुंह पर से नकली दाढ़ी हटाकर दिखाई तो अली बाबा परदादा ने जान लिया कि वो तो 40 चोरों का सरदार था। मर्जीना ने कुप्पे खोलकर बाकी चोर भी उन्हें दिखाए। अली बाबा ने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर बहुत से गधों पर उन्होंने रातों रात वो तमाम दौलत गार से अपने मकान में मुंतकिल की। इस तरह वो कारून जैसे ख़जाने का मालिक बने और ये ख़जाना अब तक नस्ल दर नस्ल हमारे पास मुंतकिल होता रहा था कि ये मामला पेश आ गया। लेकिन ये क्या बात हुई? कहाँ तो हमारे परदादा की सिर्फ एक मुलाजमा ने 40 चोरों का सफाया कर दिया था, और कहाँ अब हम 40 के मुकाबले में सिर्फ एक चोर है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका बाल तक नहीं बीका कर सके। दूसरे अली बाबा ने कहा, हम इन पहाड़ियों में उसे ढूंढ निकालेंगे, वो बचकर जाएगा कहाँ। अब उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर उधर चट्टानों पर मारे मारे फिरते रहे, लेकिन चोर को न मिलना था न मिला। फिर थक कर बैठ गए। फिर जान में जान आई तो फिर तलाश शुरू कर दी। फिर थक कर बैठ गए। बहुत देर तक यही करते रहे। फिर उन्हें भूख ने निढाल कर दिया और फिर मारे भूख के बेचारों का बुरा हाल हो गया। मारे भूख के हमारा तो बुरा हाल हो गया। हमें तो जल्द अज जल्द शहर पहुंचना चाहिए, वरना हम तो मर जाएंगे भूखे। एक अली बाबा ने घबरा कर कहा, हाँ आओ चलें। दूसरे ने कहा। अब उन्हें तलाश हुई अपने गधों की, लेकिन गधे उन्हें कहीं पर नजर न आए। अरे गधे कहाँ गए? एक ने चिल्ला कर कहा। उनका तो हमें ख्याल ही नहीं रहा, जल्दी से उन्हें तलाश करो। अब सब गधों को तलाश करने लगे। पहले चोर को तलाश करके थक कर चूर हो चुके थे, अब बाकी ताकत गधों की तलाश में खर्च हो गई और वह बेदम होकर गिरने लगे। वो इस काबिल नहीं थे कि पैदल चलते हुए शहर तक जा सकते। उन्हें तो पैदल चलने की आदत ही नहीं थी, और अब तो मारे भूख, प्यास और थकन के उनका इस वीराने में बुरा हाल था कि चंद कदम चलना भी उनके लिए पहाड़ सर करने से ज्यादा मुश्किल लगता था। क्या हम कभी शहर नहीं जा सकेंगे? एक अली बाबा ने चिल्ला कर कहा। काश वो चोर आ जाए, हम सारी दौलत खुशी से उसे दे देंगे। बस उससे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करेंगे कि हमें हमारे शहर पहुंचा दे। दूसरे ने कहा, लेकिन वो क्यों आने लगा? वो तो अब हम सब के हिस्से की दौलत लेकर ऐश करेगा, लेकिन अब तो उसकी आइंदा न जाने कितनी नस्लें ऐश करेंगी। एक ने कहा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। चट्टानों में एक आवाज गूंज उठी। उन्होंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। बोलने वाला नजर न आया। कौन हो तुम? कहाँ छुपे हो? सामने आकर बात करो। इसकी जरूरत नहीं, मेरी बात सुन लो। तुम लोगों ने दौलत को सिर्फ ऐश और आराम करने का जरिया बना लिया था। ना किसी काम के रहे थे और ना काज के। मुसलसल आराम परस्ती और काम चोरी ने तुम लोगों की अकलों पर भी चर्बी चढ़ा दी थी और तुम कुछ सोचने के काबिल भी नहीं रह गए थे। यहाँ तक कि तुम लोगों की अकलें बिल्कुल मारी गईं। नतीजा ये निकला कि पहले एक अली बाबा की सिर्फ एक मुलाजमा ने 40 चोरों को ख़त्म कर दिया था। आज एक चोर इस काबिल है कि तुम सबको ख़त्म कर दे। नहीं नहीं, हम पर रहम करो, हमें ना मरने दो, हमें किसी तरह शहर पहुंच जाने दो, फिर हम कभी इस दौलत का नाम तक नहीं लेंगे। वादा करते हो? चोर की आवाज़ उभरी। हाँ वादा करते हैं। तुम इस दौलत को कभी ख्याल तक में नहीं लाओगे? नहीं लाएंगे। अच्छा एक बात और सुन लो, मैं चोरों के उस सरदार खानदान का आदमी हूँ। नस्ल दर नस्ल हम लोग अपने परदादा के कातलों की तलाश करते चले आ रहे हैं और आखिर मैंने तुम लोगों को तलाश कर ही लिया। मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। मैं हरगिज़ कामयाब ना हो पाता अगर तुम लोगों ने इस दौलत का सही इस्तेमाल किया होता। इससे कारखाने लगाए होते, कौम को कोई फ़ायदा पहुंचाया होता, इससे अस्पताल बनाए होते, स्कूल खोले होते, लोगों की भलाई के इदारे बनाए होते। तुम तो दौलत पर सांप बनकर बैठ गए और इस पर ऐशो आराम करते रहे। नतीजा ये कि सिर्फ एक चोर ने तुम 40 को शिकस्त दे दी अपनी अकल के जरिए। इसी अकल से जब मर्जीना ने काम लिया था तो 40 चोर मारे गए थे। इसी अकल से जब एक चोर ने काम लिया तो 40 अली बाबा को शिकस्त दे दी। हमें सिर्फ खाने पीने के लिए कुछ दे दो और शहर तक पहुंचा दो। अच्छी बात है, मैं जिंदगी गुजारने के लिए एक मौका तुम्हें और दूंगा। ये लो खाना, ये लो पानी, पहले पेट भर लो, फिर तुम्हारे गधे तुम तक पहुंच जाएंगे। तुम उन पर सवार होकर शहर चले जाना और मुझसे आइंदा के लिए कोई गरज ना रखना।
اگر تم نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کے آس پاس خوراک اور پانی کے ڈبے اور بوتلیں گرنے لگیں۔ وہ کھانے پر بری طرح ٹوٹ پڑے۔ کھانے اور پینے کے بعد ان کی جان میں جان آئی۔ اسی وقت انہیں اپنے گدھے نظر آئے۔ ایک چٹان پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ ارے تھانے دار صاحب، آپ؟ ہاں، میں تھانے دار ہی تمہارا چور ہوں۔ قدرت نے مجھے پولیس کی ملازمت دے دی اور اس طرح میں شہر شہر پھرتا پھراتا یہاں آ گیا اور اس طرح تم لوگوں کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، لیکن تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم مجھ سے اپنی دولت دوبارہ حاصل کر لو گے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس ساری دولت کو سرکاری خزانے میں داخل کرا دیا ہے۔ 40 علی بابا دھک سے رہ گئے۔ پھر وہ گدھوں پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ چل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسرے دن آس پاس کے لوگوں نے دیکھا 40 علی بابا گدھوں پر سوار جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر لانا تھیں تاکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔